पूजा जी वेलकम पहले तो. Thank you so much for inviting me here. No, it's a pleasure because like when I heard first time about you, I was like, wow, this is something we need more and more into our world, into our society as well. कि लोग जितना ज़्यादा ये करें recycle को लेके उतना ज़्यादा better होगा. So first of all, like you started your company Namital like almost like few years back in 2018, if I'm not mistaken. Yes, correct. So tell us like how what happened, why you changed your career from you were telecom engineer, right? Yes, Before that. yes, Okay. yes. So what led you to change from telco to completely into a new industry out of blue? Ji. So I am electronics and telecom engineer and born and brought up in Pune itself. Oh wow. So after that, I got placed in IT industry, Capgemini, if you heard the name, Yes, right? I have. Okay, I worked there for 4 years. Okay. During those 4 years, I started studying about environment and renewable energy. So I've completed my post graduation in renewable energy from Terry University, Delhi. Okay. So after my post graduation, actually, I started searching and studying about upcycling and recycling of different materials like plastic, tire, textile, etc. But I get to know that tire is very serious issue It because is, we yeah. are generating around 15 million tons of scrap tires every year. Wow, 50 million. Yes, That's a big yes, number. And that's alone yes. in like Maharashtra or like India? No, in world actually, Oh, in world, 15 okay. million in world. So after that, I started meeting different expertise and mentors from tire sector. Yeah. And in one of my brainstorming session, I concluded that yes, we should upcycle the tire, and we can make some lifestyle product out of it. Okay, like footwear, because the product should not involve any hand touch or face touch, direct hand touch or face touch, because at the end it is scrap tire. Yes. And also, from what I heard, you're not doing any sort of chemical treatments on the tire. You're like keeping it as it is. Okay. Exactly. So, Wow, so for tire scrap, we have another option of recycling of tire. This is also known as pyrolysis process. okay. So, pyrolysis is nothing but some chemical reaction, chain of chemical reaction, in which we get oil, steel gauze, and carbon black as output. Okay. Which is very useful process, I can say, but it has to be executed in controlled environment. Otherwise, it will create pollution again. So, which is not recommended at all. Okay. So tire is basically a non-biodegradable material, and it is nothing but the dangerous addition to our landfill. It is very bad. Yes. So I started studying about upcycling and different lifestyle products that can be made out of tire. Okay. But yes, I concluded at the footwear because it will improve the durability of the footwear. Because we are using truck tires as our raw material. Okay. So they are very high quality PBR rubber. Yeah. So it will improve the durability of the footwear, and hence the journey started with the Namital. So after the idea came up, and then I started working on it with the help of local cobblers. I was successful to make 2 prototypes out of tire. First one was made up of aeroplane tire, and second one was made up of truck tire. 100% aeroplane tire, 100% truck tire. That's it. So then I enrolled myself in a competition called a Startup Yatra. Yeah. And there I received award of Best Upcoming Woman Entrepreneur, because that was idea pitching competition. So after receiving that award, actually the journey started with Namital. Okay. Tell me something about the name with Namital. Why Namital? I've read on your website a bit, but I want to discuss a bit further on that one. Yes, actually the brand name is Namital and the company name is Bling Green. Okay. So Namital, Nemi means tire or chakra in Sanskrit. Yeah. And Tal means soul, again in Sanskrit. So Namital means tire soul. Okay, good one. Yeah. Good play of words there with the soul and soul. Okay. बढ़िया था काफी है. तो I mean like yes, you told us कि chappal, why footwear only. तो मुझे पूछना था like are there any other like people in the market जो ये सारी चीजें कर रहे हैं आपके साथ साथ, या are there any competition, are there any collaborations happening around the same industry? जी कोई मतलब कंपनीज है जो ये कर रही है. So on similar concept, I can say upcycled footwear in India, but I am not sure about
otherwise in Australia or some other countries. I'm not sure about that. ओके ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टायर का जो प्रोसेस आपने बताया था ना, अपसाइक्लिंग का, रिसाइकलिंग का, हाउ इट वर्क्स इज, यहाँ पे काफी सारी लोकल टायर शॉप्स हैं या गैराजेस होते हैं, तो वो सारे जितने भी टायर होते हैं जो यूज्ड हो चुके हैं या फिर थ्रेड जिनमें जा चुका होता है, दे विल सेंड यू टू अ रिसाइकलिंग प्लांट, और वहां से एंड द रिसाइकलिंग प्लांट पीपल विल चार्ज द garage people some money according to the number of tires they are sending, and then they will further unki ye responsibility, they will recycle it. But recently yahan pe kya hua tha, I think couple of years back, and there was a huge fire and to the point ke pura area unhone band karna pada tha. बाद में pata laga कि it was not the first time that this has happened. So what that guy was doing, it was a bit shady actually. वो लोगों से पैसे ले लेता था, टायर भी ले लेता था. Now because the premises was on lease, after 3 or 4 years down the road, बोला ठीक है मेरे को, I'm not going to pay my rent, I'm going to empty my premises, जो मेरा माल पड़ा है वो तुम सीज कर लो. So the landlord was stuck with like yards and yards of scrap tires. Sad, very bad. And also these people were located like literally a kilometer or 2 kilometers away from the school zones and residential areas. So when that fire happened, they actually had to shut down the schools. They told all the locals like, 2 दिन घर से बाहर नहीं निकालना. It was crazy. I mean, you can see it from far away. And this happened, I think, when the fire, my home was around like 22 kilometers from that place. I can see the fire easily from my place. Exactly. वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत खराब है. Of course. And also like has आगे भी जब मैंने mention किया था कि you're not doing any chemical processing on the tire, you're just using the raw material directly. I've seen some videos जो आप use करते हैं, आपके cobblers use करते हैं, direct tire को ही काट के उनके सोल बनाते हैं. Correct. Now, have you got any backlash or appreciation from the mainstream industry, like big companies like Bata or Actions or other क्या उन्होंने backlash किया या उन्होंने बोला यार ये अच्छा product है, we like to buy it from you, or we like to type with the concept and stuff? अभी तक तो नहीं, शायद आपका वीडियो देख के पता नहीं उनको पता चल जाए तो कुछ हो सकता है, but अभी तक तो नहीं है. No reactions, I can say. Okay. No good, no bad, no reactions. No, I came across your profile actually. So I was reading some comment made on Atul Khatri's post, the comedian. And there was this lady who commented something very interesting. So I was like, okay, let me check out ke kaun hai na. And in that, she shared one of your Instagram post actually. So that's how I came across through a friend of a friend of a friend. Oh my God. Okay. So I was like, okay, this looks very interesting, and I'm all for like, because like I'm into business over here. We do like recycle inks and toner cartridges in Australia, in Melbourne. Oh. So we have franchisee business. That's the model is based around. So I was like, okay, fine, this is something very interesting and बात करनी चाहिए इनसे. Thank you so much. मुझे पता नहीं था actually ये route है आपका. मतलब. No, when I thought it, okay, fine. Then I went on your Instagram page and I contacted you. Like, okay, this is what I want to. That's why I want to take your interview, because it looks very interesting, very awareness वाला campaign है. Yes, I understand काफी सारे pollution के ways है market में, but we have to take small steps, baby steps है ये तो. Exactly. तो वही हमारी tagline है. A step towards greener earth. So it's very tiny step, but yeah, our first step, I can say. So is that like Tiny, Blink, Green and all that name came into existence? That's how was it? Or उसके पीछे कोई और story थी? नहीं. That's it. That's good. So when you do upcycle of any product, like जो final product होता है वो दिखने में इतना attractive नहीं होता, right? But when I saw your website, I saw your like design, so like, hang on, ना ये टायर से बना हुआ नहीं लग रहा मेरे को. So they were like so well made, and also I heard like through some sources that you also like जो material that you use करते हो sandals के ऊपर कपड़ा use करते हो, you also get like leftovers from local tailors. Correct. So when you told them what you want to do, what was their reaction? I mean, जी मतलब एक्चुअली ये जो आपने बोला कि लगते नहीं है अपसाइकल्ड, सो बिकॉज उसका सारा क्रेडिट मैं अपने कारागिरों को दूंगी, कॉबलर्स को. दे आर वर्किंग सो हार्ड ऑन इट, सो that's how it is possible. Yes, initially they were very reluctant to use those upcycled tires because वो कहते थे क्यों मैडम ये यूज करना है, मैं आपको अच्छा फैंसी वाला मटेरियल देता हूँ, कितने अच्छे सोल आते हैं आजकल, ये क्यों आप यूज करें, कौन लेगा आपसे ये. मैंने कहा चलो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई इट.
फिर देखेंगे, अगर नहीं लिया तो फिर तो है ही, पहले ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे कर करके मैंने 4-5 लोगों से उस टाइम पे काम करवाया कि यस लेट्स डू दिस, ये मटेरियल आज यूज करके देखते हैं, मैं कल ये लेके आती हूँ, ये थोड़ा कट करके आप डाल के देखो उसमें। ऐसे करते करते एक्चुअली वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ। तो आई यूज्ड टू सिट विद देम लिटरली फॉर 4-5 hours a day। तो ऐसे करते करते लिटरली उनकी एक्सपर्टीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही पार्ट है, तो उसी की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। एंड जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स की आप बात कर रहे थे, वो हम कस्टमाइज फुटवेयर के लिए यूज करते हैं specifically because हमारे यहाँ पे we have 2 marketing models. First one is push model, which is regular one where we design footwear, manufacture it on bulk and then sell it through our website or exhibitions or through different boutiques. And second model is pull model where we take orders from customers for any style, any size, any colored footwear. So उस मॉडल में हम वो लेफ्ट ओवर फैब्रिक यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स अवेलेबल मिलते हैं ना, ऐसा पूरा 1 मीटर 2 मीटर क्लोथ नहीं मिलता, फैब्रिक होता नहीं है। So that will become like one off piece बन जाएगा वो। करेक्ट, 1 और 2 पीसेस बनता है, तो वो हम कस्टमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और जो हम बल्क के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो हम लेते हैं पूरा मीटर्स में फैब्रिक बाय करते हैं। तो इसकी प्राइस रेंज क्या रहती है रफली? It is INR में 600 to 1000 rupees. So I think which is quite very low. यहाँ कुछ नहीं मिलता उस प्राइस में। वो अपनी पैरागॉन टाइप कहते हैं ना, वो रबर चप्पलें मिलती है यहाँ पे इस प्राइस में, तो नॉट अ डिजाइनर वेयर फॉर श्योर। तो वही है, जैसे आपने बोला कि ये लगना नहीं चाहिए कि दिस इज अपसाइकल्ड, बिकॉज हमारा फोकस ये रहेगा कि ऑफ कोर्स कंसेप्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी लोगों को, पर मोर देन दैट जो लोग भी उसे खरीदना चाहते हैं दे शुड थिंक अबाउट फैशन, कंफर्ट, वो मिलना चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट में वो है then only it is good. ये upcycled है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए. It has to be fashionable, it has to be trendy, and it has to be comfortable. Absolutely. Comfortable is ज़्यादा important क्योंकि like you're putting all complete body weight on it. Yeah. Correct. Exactly. So this is how the final product. That's good. But again, अगर ladies की चप्पलें comfortable नहीं होती तो वो ladies की चप्पलें भी नहीं होती again. Yes. I can't remember मेरी wife ने कब जूते लिए और complain ना की हो उसकी comfort को ले. Of course. I think especially showroom के बाहर निकलते वो uncomfortable बन जाते हैं. By the time it's in showroom, the comfortable thing in the world. That's good. हम लोग गए थे कहीं पे and they were doing something similar. They were not using 100% recyclable materials, but they were using part of it. And she went over there. She's like, नहीं comfortable लग रहा है. Are you sure तुझे suit करेंगे? तो after like literally within a week, Eric's comfortable नहीं है. बोला लिए क्यों फिर? ये हो ही जाता है. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस. तो ये मेरे साथ भी होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो डिजाइन अच्छा लग जाता है तो हम ले लेते हैं, पर यस कंफर्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंफर्टेबल. एंड आल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट कॉबलर्स, मैंने काफी देखा है. आई वाज लाइक मैं अपनी बेटी से डिस्कस कर रहा था कॉबलर्स को लेके कुछ मंथ्स पहले, तो मैं बोला इट्स बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट. आई मीन अगर पहले आप देखो आज से व्हेन वी वर यंग और व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम लोग देखते थे हर गली के नुक्कड़ पे एक मोची बैठा होता था जो जूते ठीक करता था, पॉलिश करता था. लेकिन आज के टाइम पे यू कांट सी दोस पीपल एनीमोर. तो ये हो क्या गया? आई मीन लाइक दैट वाज लाइक उनका जो टूल होता था एक अजीब से शेप वाला. I tried finding them to just bring it over here as a soap paste. So वो भी नहीं मिल पा रहा था मुझे. काफी सर्च किया था मैंने. But yes, shops में आपको मिल जाएंगे जो मोजड़ी वो सब बनाते, but जो स्ट्रीट पे जो कॉबलर्स बैठते हैं वो नहीं मिलता आजकल. I think and the way you're using them, and it's like literally like putting in fuel injection to the industry, I would say. Sorry, money injection to the industry. यस. तो एक्चुअली उसके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ. जैसे आपने बोला कि एक तो 2 चीजें हैं उसमें. एक फास्ट फैशन, क्योंकि हम वापस हमें रिपेयर करके ही नहीं चाहिए, जो भी हम डायरेक्टली फेंक देंगे, कुछ नया लाके यूज कर लेंगे. इज द फर्स्ट थिंग. और अगर कोई रिपेयर कर भी रहा है तो आइडियली उन कॉबलर्स का जॉब सिर्फ रिपेयर करना है नहीं, वो उनके पास स्किल है कि वो अच्छे से फुटवेयर बना सकते हैं, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरा, जैसे मेरे साथ कर रहे हैं अभी. तो उनके पास वो स्किल सेट है. पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेलास, छाते रिपेयर कर रहे हैं, या फिर बैग्स के चेन्स लगा के दे रहे हैं. इतना ही काम है उनके पास. तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये करना ही नहीं चाहती है. वो तो कुछ और करना चाहती है या फिर कुछ ढूंढ लेती है अपने लिए. दो उनके पास स्किल्स है. द मेन प्रॉब्लम इज जिनके पास स्किल्स है वो लोग ये नहीं करते. ये सबसे बहुत सीरियस चीज है मेरे लिए.
तो यस, तो वो सेकंड स्ट्राइक था मेरे लिए कि अगर मुझे अपसाइकल्ड फुटवेयर बनाने हैं तो वो सिर्फ हैंडक्राफ्टेड ही होने चाहिए, बिल्कुल मशीन मेड फुटवेयर मैं नहीं बनाऊंगी। जी। तो मेरी शुरुआत भी लोकल कॉबलर से ही हुई। मैं उनके सामने जाके बैठ गई, ये मटेरियल है, ये बनाना है, अरे तो हम करके देखते हैं। तो पहले तो उनको लगा कि ये कोई तो है, क्योंकि एज भी एज अ 26 या एज था, तो उनको लग रहा है कुछ तो प्रोजेक्ट होगा, 2 दिन आके स्कूल करके हाँ जाएगी। हाँ, तो बाकी तो कुछ होगा नहीं इसका, कुछ तो करना होगा। तो वो हमेशा मुझे यही सिखाते थे कि क्यों आप ये सब कर रही हो, मैं बना के देता हूँ ना अच्छा खासा आपको, आप घर जाओ। मैं कहा नहीं नहीं, हमें यही करना है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो वाह यस, लोकल कॉबलर्स के साथ एक बार उनके साथ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से आ गया, तो उनके जैसे एक्सपर्ट्स नहीं है अभी, आई कैन से। ना वो तो लाइक हैंडक्राफ्टेड स्किल्स लाइक वो तो अलग लेवल पे ये काफी लोग आप देखेंगे ना इंडिया में भी लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट एंड लाइक क्रिकेट फैनेटिक कह सकते हो एंड हाँ आई अंडरस्टैंड लाइक हाउ बैट्स आर मेड एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट लाइक जो आजकल मशीन्स यूज करते हैं क्रिकेट बैट्स के लिए भी या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी वी वर लाइक क्यों लाइक हैंडक्राफ्टेड बैट में जो मजा आता है वो आपको मशीन मेड में कभी नहीं आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्टली। द फील ऑफ लाइक पर्सनलाइजेशन वो सब नहीं होता करेक्ट लेकिन लेकिन करेक्ट। वही चीज है ना कि धीरे धीरे वी आर बिकमिंग अ यूज एंड थ्रो जनरेशन यहाँ यहाँ पे भी एक थे आई रिमेम्बर यहाँ पे शूज का तो अभी भी है कुछ लोग रिपेयर करवाते हैं बट बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि लोग फिर अवॉइड कर जाते हैं उसको करना करेक्ट करेक्ट, उससे अच्छा तो हम खरीद ले, वो सस्ता पड़ेगा। एग्जैक्टली एंड ऑल्सो जो नए नए मार्केट्स में आ रहे हैं जो बल्क मशीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं आप शूज देखोगे दे आर लाइक वेरी कम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस वाइज करेक्ट करेक्ट। तो तो ये भी एक दूसरा इशू आ जाता है वहाँ पे तो वेरी I mean, ट्रू, like फास्ट फैशन। exactly. So when you took it to the cobbler, like how many prototypes, like कितने जूते आगे पीछे हुए कि before you got your like final product saying yes, yes, this is the one. वो तो आप पूछे मत, मेरे पास अभी भी वो बक्सा पड़ा है जो Oh शुरू में wow, हमने बनाए। आई थिंक यस, आई थिंक 19 to 20 है वो मेरे पास। wow. जो अलग अलग, सिर्फ फिर हमने क्या किया, पैर नहीं बनाई। अगर Hmm. हम गलत हो ही रहे, हमें पता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है जो भी हम ट्राईआउट्स ले रहे हैं, तो हाँ. हमने सिंगल सिंगल भी बनाया उसके बीच में टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो पैर बनवाए नहीं, सिंगल सिंगल भी बनना है, पर ऐसे अच्छा 19 to 20 है मेरे पास, अभी भी पड़े हुए हैं कुछ कुछ पीसेस। सिंगल में फिर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक 8 नंबर एक 9 नंबर वो रंजीत की तरह एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था शुरू में, पर बाद में तो सब आई थिंक अप्रैल 2019 से एक Hmm. प्रॉपर सेलेबल प्रोडक्ट हम बना पाए, जो Okay. हल्का था, ज्यादा हेवी भी नहीं था, Wow. कंफर्टेबल था। तो या Wow, that's good. And also like when you started, I want to know like कभी भी हम लोग नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो घर वालों का एक अलग ही ओपिनियन होता है यस सपोर्टिव भी होते हैं बट कहीं ना कहीं वो सटायर कर उनका आ ही जाता है कि ये क्यों जी, तो एक्चुअली बैकग्राउंड इसमें ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इंजीनियर हुई, हाँ फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ तो मेरे मॉम डैड तो थे कि तुम, मतलब मुझे एनवायरमेंटल सेक्टर में आना है, ये क्लियर था। ठीक ओके है, मैं जब भी मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ आईटी का और मैं यहाँ आना चाहती हूँ, वो क्लियर था। ओके पर मेरी मॉम को लग रहा था कि कोई अच्छा बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा या फिर अपसाइक्लिंग से रिलेटेड होगा। तो शुरू में जब मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया और मैंने कहा कि मुझे जाना है अब स्टार्टअप यात्रा कंपटीशन के लिए, नागपुर जाऊंगी मैं, उसके हाँ लेवल पिचिंग वहां पे है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ अलग कर रही है, करने दो। पर जब मैं वहां से वापस आई और मैंने कहा यस मुझे इसी में बिजनेस करना है और ये अभी फाइनल है कि आई वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन, तो तब वो थोड़ा सा, मेरी मॉम स्पेशली थी कि आर यू श्योर तुम चप्पल बनाओगी, आर यू श्योर तुम्हें इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो यस, उनको थोड़ा सा लगा था कि ये अभी 2 महीने कहेगी पर शायद बाद में जॉब वापस चली जाएगी इसमें। हाँ पर यस, मेरे हस्बैंड एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन था, वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे कि यस यू, तो आप, उनको बहुत अच्छा लगता है बिजनेस करना या फिर खुद का कुछ स्टार्टअप होना। तो जैसे ही आइडिया आया वो बहुत सपोर्टिव थे कि यस तुम कुछ स्टार्ट करो अपना, इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। अगर उनको खुद भी अच्छा लगता अगर वो कुछ ऐसा करते, ऐसा मतलब नॉट इन अपसाइक्लिंग बट एनी बिजनेस, तो वो कह रहे थे कि यस मैं हूँ अभी जॉब कर रहा हूँ तो तुम करो जो भी तुम चाहती हो तुम कर लो। पर बाद में फिर मॉम एंड डैड भी अलाइन हुआ कि यस यू आर डूइंग गुड, कंटिन्यू विद दिस। नहीं ये पार्टनर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मैं मुझे देखने यहाँ मेरी लाइफ में अगर देखता हूँ उस चीज को तो आई रिमेम्बर लाइक when I told my partner like what I want to I have worked in the behind camera like as an AD and everything for in advertisement production and short drama productions and everything like that but I want to start doing stand up ओके and she was like okay कर लो तुम्हें अच्छा लगता है तो
ओह ग्रेट, और क्या मेरे चाहिए? मेरे पेरेंट्स को बोला तो 2 दिन तो मेरे 2 दिन तो उनके दिमाग में तो कॉन्सेप्ट बैठा ही नहीं कि ये स्टैंड अप होता क्या है। उनको मैंने बताया थोड़ा इस तरह से, अच्छा मिमिक्री करेगा, मैं मिमिक्री नहीं होती, अलग होता है थोड़ा। सो दैट हैपन, सही। एंड फिर उनको पता लग गया कि ये जिद्दी है, ये मानेगा नहीं। हाँ। क्योंकि हाँ, मेरा एक अच्छा हुआ था कि मुझे ना एक आर्गुमेंट अच्छी मिल गई थी। माय मॉम, बिकॉज इवन आफ्टर शी हैज डन हर बी सिविल इंजीनियरिंग, हम्म। after marriage she started doing completely changed her work into beauty consulting, ओह and ओके। she did it for almost like 20-25 years roughly. तो मुझे कभी ग्रेट। यहाँ आने के बाद मैंने अकाउंटिंग में पढ़ाई की थी, प्रोफेशनल अकाउंटिंग, अच्छा। हम्म। बट कभी भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो मेरे पेरेंट्स आज भी, मतलब इवन आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड एवरीथिंग, दे लाइक, देख ले तेरी फील्ड में अगर जॉब मिल जाती है तो तेरे को, सेम। मतलब करनी ही नहीं है। करनी नहीं है इसलिए। एंड दे वर लाइक, फिर पढ़ाई क्यों की, मतलब that was the only option I can get my residency in Australia at that time. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो ये बोलता है ना कि इंडिया में you only have 4 options, like डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और अकाउंटेंट। इससे करेक्ट बाहर करेक्ट। जाके बोला तो लात मार के घर से निकालेंगे। हाँ कि क्यों, इतने अच्छे ऑप्शंस तो है, ऐसे हो जाता है, एग्जैक्टली ठीक exactly. हाँ, और दूसरा क्या था, माय डैड इज लाइक फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स राजस्थानी बैकग्राउंड, और मॉम थोड़े, आई वुडंट से वेरी ऑर्थोडॉक्स महाराष्ट्रियन, बट लाइक मिक्स सॉर्ट ऑफ था। तो है। मैं उनको पॉइंट आउट करता, आपने भी तो ब्यूटी कंसल्टिंग में कन्वर्ट किया ना, फिर मेरे को क्यों रोक रहे हाँ। हो, व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी। एक एक तो आर्ग्यूमेंट रहता है अपने हाँ, पास। वो रहता है, वो लाइफ टाइम के लिए रह गया। हाँ। इन हैव यू ट्राइड एरिया लाइक डिफरेंट मार्केट में आपने ट्राई किया है ये फुटवेयर के कॉन्सेप्ट्स लाइक डिफरेंट कंट्रीज में, या फिर अभी तक आपने, यू आर स्टिल इन इंडियन बेस्ड ओनली? जी मैं अभी तो सिर्फ पैन इंडिया, वेबसाइट जो है मेरी सिर्फ जी। पैन इंडिया चल रही है। पर शुरू में मैंने यूएस में कुछ प्रोडक्ट्स सेल किए थे। जो ओके। एक बुटीक था यूएस में, तो वहां पे उन्होंने आई थिंक बल्क पे ऑर्डर किया था, एंड दिस इज हाउ वेरी लिटिल, लाइक 8 to 10 प्रोडक्ट्स आई थिंक जस्ट। ओके। पर या रिस्पॉन्स अच्छा था वहां पे। पर उसका आगे जाके कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने ही बुटीक से वो फुटवेयर वाला सेक्शन क्लोज कर दिया बाद में जाके, तो ओके। आई थिंक फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया, क्योंकि बीच में ये सब कोविड का हुआ, तो मेरा यहाँ पे ही सेल थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था। तो अभी मैं 2021 के लिए सोच रही हूँ कि यस टोटली मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्राई करूंगी। या यहाँ पे काफी सारे थैंक यू। जैसे शोज और वो सब होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जी जी। लाइक स्पेशली, सो यहाँ पे बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया फॉर बिग बॉक्स स्टोर्स ओवर हियर, कि हम्म। अगर आपने एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, you have to हम्म। at least done like 2 exhibition before we'll start putting your products on our shelves. ओह So ओके। I know a guy over here. He's an accountant as well by profession, but what he ओके। started doing, he was from Jaipur. तो उन्होंने क्या किया, जयपुर के जो चद्दर और तकिए के कवर होते हैं डिजाइनर्स, वो यहाँ जी। लाके 2-3 जगह एग्जीबिशन किए, and then he ended up selling the whole thing to Costco. ओके। So and they ended up buying like 2 or 3 pallets from him. ग्रेट। वेरी So, नाइस। so then he started like, you know what, I'm going to put my accounting job on the side completely. And Abhi, like every, I think on weekend, I think 3 or 4 days in a week, he has a small market stall, local ओके like farmers market. या यहाँ पे Victoria market काफी famous है मेलबर्न में. ओके। He has a stall over there permanently, and he also ग्रेट। do like house shows and everything. So यस। तो एग्जीबिशंस तो यस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कस्टमर बेस हमें वहां पे मिलता है, तो जी, शायद वो स्टोर में या किसी और जगह पे नहीं हाँ, मिलेगा। एक्सपोजर मिल जाता है साथ में आपको ना, एक्सपोजर लोग, मिलता और लोग आजकल ये ना कि द गुड थिंग इज पीपल आर थिंकिंग अबाउट रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग. है। यस यस। That's the major change which has come. Like आज से 10 साल पहले अगर किसी को रिसाइकलिंग छोड़ यार कौन करेगा यार. हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं, अभी तो माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है, बहुत। खासकर हम लोग, I think the younger generation that is coming, like I remember Yeah. like talking to my daughter like other day, and she was like, नहीं ये क्यों करते हैं हम लोग, ये क्यों करते हैं, and she's like, even like the toilet papers we buy, she makes sure like it's not like plant based, it's made from हाँ recycled material. करेक्ट करेक्ट And I करेक्ट was like, करेक्ट। okay माँ तेरा रिसाइकलिंग लेके आऊंगा मैं. वेरी गुड वेरी गुड। पर यस नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत सीरियस है इस चीज हाँ, के लिए। ये तो है. Till now we have upcycled 500 kgs of waste tires. तो मतलब we have 500 kg less waste in our landfills. तो उस तरह एक हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि conventionally we are using soles made up of plastic और virgin rubber, right? So Okay. conventional जो भी फुटवेयर बनते हैं मशीन में, जी. तो उसमें प्लास्टिक या फिर वर्जिन रबर होता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हमने बचा लिया मार्केट में आने Wow. से, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है विद सम अपसाइकल्ड मटेरियल।
तो और तीसरी सबसे बड़ी मतलब अपसाइक्लिंग के बारे में कहना चाहती हूँ. रिसाइक्लिंग आई थिंक सबको पता होता है, पर अपसाइक्लिंग में इतना ही नहीं है कि आप एक गार्बेज से कुछ उठा के उसको सेलेबल बनाते हो, ये तो एक एक हाँ. बात है. पर दूसरी बात ये है कि जब भी आप अगर उस चीज के लिए प्लास्टिक यूज होता तो ऑयल या फिर वाटर जो भी रिसोर्सेस है हमारे वो इतने ज्यादा यूज हो जाते, तो उसका यूज भी हम यहाँ पे कम करें, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ So it's a ripple effect. Exactly. You start with one thing and the ripple अपसाइक्लिंग. effect goes on and on. बहुत सही की बात की आपने. नहीं, काफी अच्छा लगा ये तो. 500 kgs, it's a big massive amount. और दूसरी बात अगर मैं इसमें ऐड No, करना no, no, चाहूँ definitely go for it. यस, तो जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है अभी, अगर हम एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट जी. चेंज को लेकर बात की तो आई थिंक यस, इंक्रीजिंग वेस्ट दैट इज गार्बेज इज हाँ. वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू, और दूसरा पोल्यूशन है. पर ये इम्पैक्ट है हमारे लाइफस्टाइल के. तो आई वुड से कि इफ अगर हमें वहां पे कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल. और वी हैव टू स्टिक विथ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर ourselves and the next generations. So I think that's Exactly, it. like because like we are buying more things that we can consume. करेक्ट जी. एक्चुअली उसका अगर लाइफ टाइम भी हमने सेट किया ना कि हाँ. इतने साल के लिए मैं एक प्रोडक्ट यूज करूंगी ही, जी. चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी इट इज हेल्पफुल. Okay. इट इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग लेस, बट अगर हमने उसका लाइफ टाइम सेट किया कि ठीक जी. है चलो आज मेरे पास 25 प्रोडक्ट्स है, तो मैं ये कितने साल तक चला सकता हूँ, दैट इज बिल्कुल. मोर इम्पोर्टेंट. या तो No, that's a good way of thinking. यस. वैसे like लोग आजकल देखा देखी काफी हो गई. अच्छा उसने नया ले लिया, चलो मैं भी नया लेके आता हूँ, आती हूँ. वो स्टार्ट हो गया है. और ये एक्चुअली इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली. यू विल सी दिस इम्पैक्ट इन लाइक फॉरेन कंट्रीज एज वेल. आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोच रहे हो शायद तक कहीं ना कहीं डाउन द लाइन, इफ यू कैन यस. डिस्कस समथिंग. ये श्योर. ओके. और अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स 2021 में सिर्फ इसी प्रोडक्ट को लेके मैं थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ, मे बी एक्सप्लोर मोर कंट्रीज एंड डिफरेंट मार्केट. पर उसके बाद जैसे मैंने अभी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन फोकस किया है, तो आई थिंक थोड़ा B2B बिजनेस में ये अपसाइक्लिंग कैसे कर सकती हूँ वो मैं सोच रही हूँ. तो आई थिंक 2021 में थोड़ा बैकग्राउंड वर्क करना पड़ेगा मुझे, जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो B2B बिजनेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, तो वहां पे कुछ अगर मैं अपसाइक्लिंग के लिए कर सकती हूँ, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. तो ये प्लान्स है जो जिसके बारे में सोचती, अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो ये दो चीजें मैं करती रहती हूँ. नहीं, अच्छी बात है, वो तो सोचना ही चाहिए. And then also like have you been approached by after your awards and after your exposure to the main market, have you been approached by any like angel investors or anything like that कि आप आगे Yes. करिए, हम आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं all? जी जी जी, बहुत सारे हैं एक्चुअली Wow. जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो ये बात है कि इंडिया में या फिर मे बी वर्ल्ड वाइड भी है, तो अभी मतलब इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है. इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान हो. जी. ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो एक चीज है, जी. मैं कहूँगी ये तो बस शुरुआत है. कॉन्सेप्ट पे पैसे देने वाले लोग तो है ही, पर उससे भी ज्यादा अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है तो पैसे देने वाले, इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं. पर मैं अभी प्रेफर कर रही हूँ कि मैं मुद्रा लोन से ही काम कर रही हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. तो मेरा जो पूरा फंडिंग है दैट इज टोटली मुद्रा लोन. Okay, tell me something about this मुद्रा लोन, because like मेरे लिए मुझे आइडिया नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में. जी, तो इंडियन गवर्नमेंट में ये स्कीम है जो अगर आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हो, स्पेशली अलग अलग टाइप 3 लेवल्स उन्होंने किए हैं बिजनेस के, जिसके लिए बहुत ही कम आई थिंक 1 लाख से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए. उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, जो आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, कोई बिजनेस प्लान नहीं देना पड़ेगा. बस आपको आपकी कंसेप्ट जाके बतानी है, और हमारे जो बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक, तो उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो आपको लोन दे सकते हैं. इट विल बी अ कैश क्रेडिट और टर्म लोन, एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. और अगर आपका बिलो 10 lakhs का है तो आपके लिए आपको बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, 2-3 थोड़ा सा आगे का आपको बताना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस एंड एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेगी. अगर वो आपका सब काम कर गया तो अगेन विदाउट एनी कोलैटरल. पर कैसे होता है, आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, तो आपका स्टॉक ही उनके लिए कोलैटरल जैसे वर्क करता है. यस, और वो आपको टर्म लोन या फिर कैश क्रेडिट अगेन आपको लोन दे सकते हैं. और उसके आगे अगर आपको जाना है तो आई थिंक दे हैव सम फ्यू क्राइटेरियाज. तो अगर आपने वो फुलफिल कर दिए तो आपको बियॉन्ड 10 lakhs भी मुद्रा लोन के अंडर मिल जाएंगे. Oh, that's good, because like easy, yeah. Because like I think इंडिया में काफी बिजनेसेस इसलिए टेक ऑफ नहीं कर पाते बिकॉज कैश फंडिंग इनके पास इजीली अवेलेबल नहीं होती है.
Correct, इवन correct, लाइक तो ग्रेट आइडियाज होने के बावजूद भी वो वहीं पे रह जी। जाते हैं. पर शायद लास्ट 4 इयर्स मैं कहना चाहूंगी कि माइंडसेट चेंज हो गया है, क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया कि यस टोटली वो पुश कर रहे, बूस्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि आप लोग जी. स्टार्टअप शुरू करो जब आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट हो. तो मेंटर्स है, एक्सपर्टीज है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स वो कंडक्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक वी आर बूस्टिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप इन That's good, इंडिया that's नाउ. good. And still लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं फिर. यस. वो तो रहता ही है, यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत ना. इवन गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच थिंग्स बट लोग बोलेंगे ने कभी कुछ राइट. नहीं किया. Like regardless to any government, BJP, Congress, Manse and all. करेक्ट. एग्जैक्टली. But honestly, Pooja, it was lovely talking to you, and thanks for sharing your experience and your journey and your products. I will put the description of your Facebook page and the website in the link in the description of this video as well. Yes, And we'll thank try you so to much. we'll try to promote this as much as possible because it's like a really good initiative. I mean, like there are Right. literally, I can say, handful of people who are doing this in the world, and being you being one of them, it's like really amazing. Thank you so much for inviting me. It was our pleasure. It was our pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Have a good day. Bye bye. Bye bye.